ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بروی۔ جیسے کہ مجھ سے ایک دیوبندی سے بات ہوئی جن کا نام ہے لیاقت دیوبندی قذاب اعظم، ٹھیک ہے۔ انہوں نے میری آئی ڈی ڈالی ہوئی ہے اور لکھا کیا ہے کہ صادق رضا کے فتوے سے احمد رضا کافر اسماعیل علیہ رب العالمین این قذاب دجال ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ پوری آئیڈیو میں سن سکتے ہیں، پوری آئیڈیو میں کہیں پر بھی وہ مجھے کہیں پر کسی ٹاپک پر مجھے ہرا نہیں پایا تھا۔ ہر بات ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، میں نے پورا جواب دیا۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ علماء کو برگلائیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کو ایسا ثابت کر دیا، ویسا ثابت کر دیا۔ حالانکہ آپ پوری آئیڈیو میں سن سکتے ہیں، یہ لوگ اپنی خود کی مار کھائی ہوئی آئیڈیو ڈالتے ہیں۔ اب کیا پتا یہ آئیڈیو ڈالنے والا کون پاگل ہے، بے شرم ہے، قول مناظرہ چینل والا، اس کی آئیڈیو بس اس کے پاس آتی ہے اور وہ ڈائریکٹ اپلوڈ ہی کر دیتا ہے۔ جو ٹائٹل پوچھ لیتا ہے، ٹائٹل کیا ڈالو، ٹائٹل پوچھ کر کے بس ڈال دیتا ہے۔ وہ سنتا بھی نہیں کہ بھائی اس میں ہمارے مطلب کی بدنامی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں تم اپلوڈ کرو، ایسی ہماری بھی محنت ذرا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گا، خود کی مار کھائی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہو اور ہم کو بھی ذرا محنت کرنا کم ہو جائے گا۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جاہل جو بندی ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا ان کو پکڑ کے لے کے جاؤ علی اصغر اپنے حواریوں کو، اگر آپ پڑھاؤ لکھاؤ، اس کو اپنی ہی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہی مار کھائی ہوئی آئیڈیو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور سارے کے سارے تمہارے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی اصغر سے بات کرو، علی اصغر سے بات کرو۔ تو کل رات میں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہیں علی اصغر مر گیا تو پھر یہ کس کے بھروسے بیٹھیں گے؟ اس لیے علی اصغر تم سے کہتا ہوں، میری بات تم سے پہنچے، تم سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ذرا پیسے ویسے بھیج کر کے ان کو مدرسے میں داخلہ کرا، ان کو کچھ پڑھاؤ، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں سے بات کر سکے۔ میں اکیلا ہی تم لوگوں کی بینڈ بجا رہا ہوں اور تم لوگوں کو شرم نہیں؟ علی اصغر تمہارے میں شرم نہیں ہے؟ 2-3 سال سے میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال کے رکھتے ہو، آتے ہو بڑبڑا کے فون کاٹ کے بھاگ چکے ہو، اور ہر بار تم فوٹ کر کے مجھ سے بھاگے ہو، ہر بار میں تم کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، میں سنی حنفی بریلوی ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، نہ ہی میں عالم ہوں، نہ ہی میں کوئی حافظ ہوں، میں تو کہتا ہوں، لیکن پھر بھی تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے، تمہاری جماعت کی کوئی بات نہیں کر سکتی۔ ہاں، صرف بڑبڑانے آئیں گے، گالی گلوچ کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شرم کرو۔ اگر تمہاری ذریت میں کوئی فائدہ ہو تو آؤ، صرف اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لے جاؤ، بس پھر اس سے آگے کوئی بات کریں گے۔ تمہاری پوری جماعت کو میں کافر ثابت کروں گا، اور دلیل کے ساتھ، دلیل میرے دل میں ہے، الزام نہیں لگاؤں گا۔ کوئی بھی آئے، تمام دیوبندیوں کو میرا چیلنج، کھلا چیلنج، صرف آئے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیاقت صاحب، ہاں فرمائیے۔ جی میں صادق علی بات کر رہا ہوں، ابھی آواز صاف آ رہی ہے؟ اچھا جی آواز صاف آ رہی ہے نا ابھی؟ ہاں آ رہی ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1906 میں جب وہ احکام الحرمین لائے تھے، وہ فتاوی لائے تھے عرب سے، تو اس وقت جیسے رشید احمد گنگوئی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، خلیل احمد امرچوی صاحب، قاسم نانوتوی صاحب نے اس پر کیا جواب دیا تھا؟ اس میں مطلب اپنی جو عبادتیں تھیں ان کو دفاع کیا تھا یا پھر اس کو تسلیم کیا تھا، کفر تسلیم کیا تھا؟ اس کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں۔ احکام الحرمین کے جو جواب جی میں لکھی گئی کتاب ہے وہ نہیں پڑھی آپ نے؟ آپ بتائیں۔ نہیں، ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر احکام الحرمین آپ کو پتہ ہے تو اس کے جواب میں لکھی گئی کتاب میں آپ کو یاد نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مجھے معلوم ہے، یہ کتاب جو ہے المحنت کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں۔ تو یہ کتاب تو اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد لکھی گئی نا؟ اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا 1921 میں، اور آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب 1943 تک حیات رہے، ان کا وصال ہوا، وہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ وہ کتاب جب چھاپی گئی ہے اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد چھاپی گئی ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس کو مطلب تسلیم کیا یا پھر ان عبادتوں کا دفاع کیا خود سے؟ چھاپی گئی یا لکھی گئی؟ چھاپی گئی، لکھی تو گئی اس وقت، چھاپی گئی وصال کے بعد، اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد چھاپی گئی تھی۔ ہاں تو چھاپنے سے کیا فرق پڑتا چھاپنے ہے؟ سے فرق یہ پڑتا ہے نا کہ مطلب جب تک، ہاں بولے میں سنتا ہوں۔ چھاپنے سے کتاب عوام میں آتی ہے اور لکھنے سے جی علماء میں آ گئی تھی کتاب۔ جی اچھا علماء میں آ گئے تھے نا۔
बात तो आवाम तक पहुंचानी थी ना, लोगों तक। सुनिए 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 तो सही। हाँ बोले बोले बोले। वक्त तो लगता ही है, उस वक्त कौन सी इतनी प्रेस इतनी फास्ट थी या इतना फास्ट काम था कि देखिए देखिए मामला ये है ना कि देखिए मैंने आपको बता दिया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने किताब लाए थे हुस्सामुल अरमान 1906 में और विसाल हुआ 1951 में, तो बीच में डिफरेंस कितना है? 15 साल का वक्त है, 15 साल का। तो ये मुझे समझना था कि 15 सालों में उन्होंने क्या इस इबारत को, मतलब वो हुस्सामुल अरमान का उनके बाद क्यों छपवाया, तकरीबन 12 साल बाद क्यों छपवाया? उस वक्त उन्होंने कोई जवाब दिया या फिर उसको मतलब कुफरिया माना अपने अकीदे को? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, वो कोई वक्त की मसलियत हो सकती है कि लेट उसको प्रेस में क्यों छापा गया या क्या क्या मतलब था, लेकिन ये है कि सऊदीया से उसी वक्त ही उसका जवाब लिखकर उनको पेश किया गया, उन्होंने तस्लीम किया और सऊदीया वालों ने अपना उसके सारे फतवे से रुजू कर लिया। सऊदीया वाले ने? जी। लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि कासिम नानवती साहब जो है ना, उनके बारे में तो आप जानते होंगे जी, उन्होंने तो इसको खुद तस्लीम किया कि हाँ ये कुफरिया इबारत है, और अशरफ अली थानवी साहब ने भी माना। उनकी अपनी किताबों में मौजूद है। कौन सी किताब? ये मलफूज़ात हकीमुल उम्मत है, जिल्द 4 में सफ़ा नंबर 337 है। मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। सुनिए तो सही, सुनिए बोले 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 बोले। हजरत मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी इबारत को कुफरिया कहा है और मौलाना अशरफ अली थानवी ने कौन सी को कहा? अपनी ही इबारत को, जो सैयदुन्नास की इबारत को खुद ही माना। जी अच्छा, खुद ही इबारत लिखी और खुद ही कुफरिया मान लिया है? जी जी माना, बिल्कुल कुफरिया। उन्होंने खुद इकरार किया कि कुफरिया नहीं। मैं आपको इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। वल्लाहु आलम। अगर मैं सुनिए अगर मैं गलत बोलूँ ना, अगर मैं गलत बोलूँ, क्या दोगलापन। सुनिए मैं अगर गलत बोलूँ ना तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने मलफूज़ात में इकरार किया है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 337 है। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब सैयदुन्नास पर मौलाना पर फतवे लगे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ों से सीखा है, बड़ों से सुना है। ठीक है, तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपने आप को खुद कहा कि मैं काफिर से मुसलमान होने का तरीका तो मैंने बड़ों से सुना है, वो तो खुद इकरार कर रहे हैं। अगर चाहिए हवाला तो मैं आपको ओरिजिनल किताब का मैं हवाला भेज देता हूँ। ये कोई अगर मैं बराबर जी इकरार है, उन्होंने खुद कह रहे हैं ना कि मैं काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ों से सीखा है। काफिर माना जब भी तो कलमा पढ़ रहे हैं, तो कैसे कलमा पढ़ रहे हैं? नहीं, फिर तो वो मुसलमान हो गए, तौबा कर ली, तो फिर तो आपके बरेलवी जो मुसलमान को काफिर कहते हैं वो सारी काफिर है। काफिर ऐसे नहीं, मुसलमान नहीं ऐसे नहीं होते हैं। जब तक अपने बदअकीदगी से नहीं, जब तक अपने बदअकीदगी से तौबा नहीं करें। सुनिए तौबा तेरे घर से मशहूर है, तेरे घर से दिखाऊंगा कि वो तो दिखाना, वो जब दिखाना अगर आपके पास हो तो अभी लाइए। और जो कि उन्होंने कहा कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका, आप काफिर होने से मुसलमान होने का तरीका सीखा है, तो उन्होंने अपने बदअकीदगी से तौबा किया। ये पढ़ा नहीं पढ़ा? कलमा पढ़ने से क्या होता है? कलमा तो कादियानी भी पढ़ना है। कलमा तो कादियानी भी पढ़ता है, आप उसको मुसलमान मान लेंगे क्या? उसने काफिर से मुसलमान होने का तरीका बयान किया, उस पर अमल भी किया। तो वही क्या अमल किया? कादियानी भी तो कलमा पढ़ता है, आप उसको मुसलमान क्यों नहीं तस्लीम करते हैं? क्यों काफिर कहते हैं आप? जो अभी आप बयान कर रहे हो, हाँ जो आप अभी बयान कर रहे हो, वही तो मैं बयान कर रहा हूँ कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका पढ़े तो कलमा तो कादियानी भी पढ़ता है, आप उसको मुसलमान तस्लीम क्यों नहीं करते? मेरा सवाल ये है। अभी कोई कलमा पढ़ेगा? शरीयत का वसूल ये होता है कि जब तक कि वो अपने बदअकीदगी से तौबा ना करे, कलमा तो कादियानी पढ़ता है लेकिन खत्म नबूवत का इनकारी है, इसलिए वो काफिर है, मुर्तद है ना? जब तक वो अपने बदअकीदगी से तौबा ना करे, उसके बाद में वो कलमा पढ़े, जब जाकर उसको मुसलमान माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो एक जिंदगी सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा भी और कुफ्र भी करता रहेगा, तो वो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि वो खत्म नबूवत के डाकू है। तो अहमद रज़ा ने लिखा हम कलमा को की तकफीर नहीं करते, आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। नहीं, आप जो इबारत गलत बता रहे हैं, मैं उसकी इबारत में मुकम्मल बता देता हूँ। तमीदे ईमान की इबारत बता रहे हैं ना। सुनिए आप अपना बता देता हूँ। आप अभी कह रहे हो अहमद रज़ा कह रहा है, हाँ बोलिए चले बोले, हम कलमा गो की तकफीर नहीं करते। पूरी पढ़िए, पूरी इबारत पढ़े ना, पूरी पढ़े। अहमद रज़ा कह रहा है कि हम कलमा गो की तकफीर नहीं करते। आगे पढ़िए ना, आगे पढ़े। कलमा गो की तकफीर से हमें मना किया गया है। आगे पढ़े। अब
तेरे दावे से ही मौलाना नहीं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कलमा को साबित हो रहे हैं और तू तकफीर कर रहा कैसे? है। तो तू कैसे मैं बताऊं? वो मैं बताऊं तमीज़ ईमान में मुकम्मल इबारत क्या है कि आला हज़रत मौला ताला फरमाते हैं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को मुसलमान मानता हूँ, तकफीर नहीं करता हूँ, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। और आगे क्या लिखा हुआ है कि जब तक उसका कुफ्र वजह कुफ्र आफताब की तरह रोशन ना हो जाए, ठीक है, उसका कुफ्र जब तक आफताब की तरह रोशन ना हो जाए तब तक उसके ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा। और इन पर तो कुफ्र हुक्म लगा और उन्होंने तस्लीम भी किया। ये मेरे पास देखिए दूसरी किताब है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 252। अरे सुन लीजिए। हेलो अरे हेलो भाई, हेलो हेलो इस तरह ट्रेन ना चलाइए लंबी, इस तरह लंबी ट्रेन नहीं चला रहा, मैं तो हवाला पढ़ रहा हूँ। आप जो बात पढ़ रहे हो तो अधूरी पढ़ रहे हैं, मैं उसकी मुकम्मल पढ़ के सुनाया तमीज़ ईमान की। ये बरेलवियों का रवैया है। रवैया नहीं जनाब, मैं तो रवैया नहीं, मैं तो देखिए उनकी किताब पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं मुकम्मल इबारत पढ़ रहा हूँ, आप मुकम्मल नहीं पढ़ रहे। आपने जो इबारत पढ़ी है उसी इबारत से मौलाना अशरफ अली थानवी कलमा गो साबित हो रहे हैं। जब तक वो अपने बदअकीदगी से तौबा नहीं करेंगे मुसलमान नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कादियानी तो कलमा भी पढ़ता है, आप उसको मुसलमान तस्लीम क्यों नहीं करते? मैं तो वो बार बार कह रहा हूँ कलमा वो नहीं पढ़ता है, उसकी किताबों में नहीं है, जगह जगह किताबों में कि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर भी आप उसको मुसलमान क्यों नहीं तस्लीम करते बताइए? वो खत्म नबूवत के मुनकिर है। हाँ बस यही बात है ना, और यही तहज़ीरुन नास में भी यही बात है, खत्म नबूवत के मुनकिर है। उन्होंने इस इबारत से रुजू किया है, तौबा किया, वो मुझे दिखाइए। तहज़ीरुन नास जो है ये मौलाना अशरफ अली थानवी की है। नहीं कासिम नानोती, मैंने क्या पढ़ा तहज़ीरुन नास पर जब मौलाना पर की हो रही है। हाँ तो उसको बयान की हो रही है, आप ठोक रहे हो बीच में ले आके तहज़ीरुन नास, आपको इल्म नहीं है कुछ। मैंने जो इबारत पढ़ी आप समझे ही नहीं। मैंने क्या कहा, तहज़ीरुन नास पर जब मौलाना पर फतवे लगे तो मौलाना ने जवाब नहीं दिया, कहा कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ों से सुना है और मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बयान कर रहे हैं आपके हकीमुल उम्मत साहब बयान कर रहे हैं और रिवायत कर रहे हैं। कैसे कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा? हाँ मुसलमान कलमा पर कैसे मुसलमान हो जाएगा? कैसे? तो आप कादियानी को मुसलमान क्यों नहीं तस्लीम करते आप? गैर मुस्लिम, अब किसी गैर मुस्लिम को आप मुसलमान करो, किस तरह करोगे बोल? अरे तो पहले उनके बदअकीदगी थे, उनको उनके जितने कुफ्रियात अकीदे उनको तो सबको छोड़ेगा, सबसे तौबा करेगा, फिर बाद में कलमा पढ़ेगा। किसी गैर मुस्लिम को आप मुसलमान करोगे, क्या करोगे? सब जितने उसके अकीदे हैं, सब जितने अकीदे सबको छोड़ना पड़ेगा उसको। ये जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मुसलमान किया करते थे तो ये सारा को कहलाया करते थे। सारा कुछ हो क्या फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब उसके बाद कोई जितने उनके अकीदे थे, यहूदी या फिर ईसाई जो थे, जो बाद में मुसलमान हुए, उनके कोई ऐसे अकीदे थे बाद में जो पहले उनके अकीदे थे? अब एक रिवायत मुझे बता दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कुफार को कत्ल करना चाहा तो उसने कलमा पढ़ लिया तो कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आपने कत्ल क्यों किया? क्या वजह? वो बाहर दिल से पढ़ रहा था। तो हज़रत अली को कहा कि आप दिलों का हाल कब से जानने लगे हो? हाँ तो क्या हुआ? तो हाँ तो उसने पूरी रिवायत पढ़िए ना, उसने ला इलाहा वो देखिए डर के मारे कलमा पढ़ना। सुनिए वो कुएं में छुपा हुआ था, वो रिवायत मुझे याद है, कुएं में छुपा हुआ था, ठीक है, उस पर ज़िनाकारी का हुक्म लगा हुआ था, ठीक है, ज़िनाकारी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। और उसके बाद में जब पूरी बात खुली तो वो बात साबित नहीं हुई, सच्ची बात साबित नहीं हुई, तो डर करके कलमा पढ़ा हुआ था, समझे आप? दिल से कलमा नहीं पढ़ा था, डर के कलमा पढ़ा था। अल्लाह के नबी ने डांटा तो ये आप मान गए कि कासिम नानोती साहब डर के कलमा पढ़े थे, आप मान गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने हज़रत अली को डांटा कि जब कल बंदे ने तो वही तो कह रहा हूँ, वो डर के कलमा पढ़ा था, मौत के डर से, मौत के खौफ से डर के कलमा पढ़ा था। तो अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं कलमा कबूल है, लेकिन आप कबूल नहीं कर रहे थे। आप अल्लाह के नबी कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा कबूल है, बताइए? हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब उसने कलमा पढ़ लिया तो आपने उसको छोड़ देना चाहिए था। हाँ तो ये तो हिकमतन बात बताई थी कि मतलब ऐसे कोई कलमा पढ़े तो उसको छोड़ दो, लेकिन उसने जो उसकी बात पूरी आप हदीस बयान नहीं कर रहे, उसके पर जो जुर्म हुआ था, जुर्म साबित नहीं हुआ। जुर्म साबित हो तो उसको जरूर कत्ल किया, क्योंकि उसके ऊपर बिना का उसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ था। वो नहीं बता रहे आप? वो जंग के मैदान के अंदर का वाक़या है। जंग के मैदान की बात नहीं है, जंग के मैदान की बात नहीं है, वो कुआं में छुपा हुआ था। बात है। कौन सी हदीस की बात बता रहे हैं आप? कौन सी हदीस है? रुकिए मैं निकाल लेता हूँ, बताइए तो। वो जंग के मैदान की बात है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको कत्ल कर दिया। कौन सी हदीस में बताइए मुझे, कौन सी किताब में? साहबी ने बयान किया कि उन्होंने इस तरह कलमा पढ़ा, अल्लाह के नबी ने इसको डांटा और मना किया। और तुम्हारे कौन सी रिवायत में मुझे बताइए तो सही।
तुम्हारे मुजद्दिद कह रहे, जो तुम्हारे मन गढ़ंत मुजद्दिद है वो खुद कह रहे हैं कि कलमा आप गो की इधर उधर तकफीर बातें नहीं करते। वो तो मैं आगे की बता रहा हूँ ना कि जब तक उसका कुफ्र रोशन की तरह आफताब ना हो, आफताब की तरह रोशन ना हो जाए तब तक उसका कुफ्र नहीं लगेगा। हाँ तो सही तो है ना, जब तक उसका कुफ्र आफताब की तरह रोशन ना हो जाए। कुफ्र आफताब की तरह रोशन हो रहा है तो हम लोग कुफ्र का हुक्म लगा रहे, नहीं होता तो नहीं लगाते। शाह इस्माइल शहीद के बारे में लिखा है, किसी ने पूछा तो उसके बारे में लिखा है, हालांकि खुद ही पूरी इबारत पढ़ लीजिए ना, पहले पूरी इबारत पढ़ लेना जनाब, पूरी इबारत पढ़ लेना, खुद ही पहले कुफर का फतवा दिया। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, पूरी इबारत पढ़ लेना, वजाहत हो जाएगी। खुद ही उनकी तरफ अल्लाह के आजाद के ऊपर इतनी निफाशा गालियां मंसूब कर रही है। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, खुद ही उनको कलमा गो माना, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, कलमा गो ये वो। मैं तो आपके इनके बारे में पूछ रहा हूँ कि हुस्तामुल हरमैन के बाद उन्होंने क्या उनको माना या नहीं, उसको इबारत को कुफरिया, अपनी इबारत को कुफरिया तस्लीम किया या नहीं किया, वो मौजूद अलग है, उस पर मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उधर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं तो अहमद रजा के कुफर को अहमद रजा के गले में डाल रहा हूँ ना, तब आप नहीं डाल रहे हैं। मैं नहीं सीखता हूँ, मैं तो वजाहत करके बता रहा हूँ ना, मैं तो वजाहत करके बता रहा हूँ कि आप पूरी इबारत नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी चीज कभी भी निकालती है। अहमद रजा का कुफर उसके घर से गले में लड़कता है तो कैसे जरा बताइए, कैसे इंसान काफिर कब होता है, जरा बताइए, कुरान की आयत पढ़ के बताइए। शाह इस्माइल शहीद को काफिर कहा नहीं कहा उसने? कौन सी किताब में कहा? यानी शाह इस्माइल शहीद को काफिर कहा नहीं कहा? बेशुमार किताबों में कहा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये जो कहा कि हम कलमा गो की तकफीर नहीं करते, किसके बारे में सवाल? तो पूरी इबारत क्यों नहीं पढ़ते यार, पूरी इबारत पढ़ो ना, कि जब तक उसके वजह कुफ्र आफताब की तरह रोशन ना हो जाए हम उसके कुफ्र पर हुक्म नहीं लगाते। वो तो भाई वो उलमा इकराम भी करते हैं, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही कौल है। उन्होंने जब तक बंदा पूरी बात ना नकल करे तब तक क्या बंदा दज्जाल कहलाएगा? बिल्कुल, आधी अधूरी क्यों इबारत पेश करते हैं? सुन, क्या अहमद रजा ने तहज़ीरुन नास की पूरी इबारत नकल की है? हाँ। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तेरे फतवे से तेरा अहमद रजा दज्जाल और कज़्ज़ाब ठहरा। अरे तो इल्जाम है, तुमने दलील कहाँ पेश किया है? तो इल्जाम है। बात बिल्कुल आधी बात। तहज़ीरुन नास बहुत लंबी इबारत है। तहज़ीरुन नास की मैं तो दलील मांग रहा हूँ। फर्ज से शुरू होती है, बिल फर्ज से शुरू होती है और बिल फर्ज नहीं है। अगर बिल फर्ज बाद ज़माने नबी अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खत्म नबुवत में खातिमुन नबी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बिल फर्ज अकीदा होता है। कोई नए नबी पैदा हो गए तो आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हो गए तो उसमें कहाँ से फर्क आया आपके पकड़? यही इबारत पे तो हुक्म लगा था। नहीं, बिल फर्ज अकीदा है तो आप जाने, आप मानते नहीं है उसको, क्या मानते हैं? फतवा आपके मुजद्दिद ने दिया और आप जाने। ले मैंने तो इबारत पढ़ गया, अगर बिल फर्ज बाद ज़माने नबी कोई नया नबी पैदा हो जाए तो बताइए खातिमुन नबी में बिल फर्ज अकीदा नहीं मानते आप? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल फर्ज कौन सा अकीदा होता है? ये किसने कहा बिल फर्ज? तो उन्होंने अपने आप को काफिर क्यों माना? उन्होंने क्यों कहा कि मैं काफिर हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं? बस इतना जवाब दे दीजिए, बस बात खत्म। मौलाना कासिम ननोतवी ने कहा है? मैं तो हवाला दे रहा हूँ, मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337। हकीमुल उम्मत कासिम ननोतवी की इबारत वो कौल नकल कर रहे हैं आपके हकीमुल उम्मत साहब, उनसे रिवायत करके तहज़ीरुन नास पर जब मौलाना पर फतवे लगे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ों से सीखा है, तो लिहाजा मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बयान कर रहे हैं आपके हकीमुल उम्मत साहब, आपके कासिम नानूती का कौल, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337। जब वो आप जो इस इबारत का दिफा कर रहे हैं उनको तो उन्होंने कुफ्रिया मान लिया, आपके हकीमुल उम्मत साहब ने भी मान लिया और कासिम नानूती साहब ने मान लिया। अगर नहीं माना तो उन्होंने कलमा पढ़ा ही क्यों? बस इतना जवाब दे दीजिए। नहीं, वो बिल फर्ज अकीदा होता है। अरे तो उन्होंने अपने आप को काफिर माना और कलमा पढ़ा क्यों? बस इतना बता, जवाब दे दीजिए, मैं सारी बात आपकी तस्लीम कर लूंगा, बस इतना बता दीजिए। अहमद रजा ने लिखा है कि अगर बिल फर्ज अल्लाह का बेटा मान भी लिया जाए, हाँ क्या लिखा है? बिल फर्ज अल्लाह का बेटा मान भी लिया जाए, वो तो कुरान में है, वो तो कुरान में है कि अगर जमीन आसमान में दो खुदा होते हैं तो जमीन आसमान धर्म भरम हो जाते हैं, वो तो मामला अलग है। लेकिन उन्होंने इस इबारत को कुफ्रिया मान के तस्लीम किया नहीं किया। और इसमें अशरफ अली थानवी साहब कितनी बड़ी डंडी मारे, आप खुद तस्लीम कर लेंगे। मैं आपको दोबारा इबारत सुनाऊंगा तो आप खुद तस्लीम कर जाएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी डंडी मारी। क्या कहते हैं कि जब मौलाना पर फतवे लगे, हालांकि हुस्तामुल हरमैन में अशरफ अली थानवी साहब पर भी फतवे लगे था, उन्होंने अपने आप को छोड़ करके कहा कि जब मौलाना फतवे लगे, हालांकि इनके पर भी
کہنا کیا چاہیے تھا کہ جب ہم پر فتوے لگے اور ان کو اس عبارت میں تسلیم کیا ہے ملفوظات حکیم الامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 میں ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلوی والوں کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جائیں گی؟ تو حکیم الامہ صاحب نے فرمایا ہاں ہو جائیں گی، ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو خود بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی بریلی والوں کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے جناب؟ آپ ذرا مجھے بتائیں۔ مسلمان کے پیچھے۔ ہاں تو وہ تو آپ کے حکیم الامہ صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ان کے پیچھے نماز ہو جائیں گی۔ کیا حکیم الامت نے احمد رضا کی کتاب کفریہ والی پڑھی تھی؟ ہاں کیا ثبوت ہے؟ حکیم الامہ صاحب تو چھوڑ دیجئے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ حکیم الامہ صاحب تو چھوڑ دیجیے، آپ سنیے، حکیم الامہ صاحب چھوڑ دیجیے، ان کے خلیفہ نے کتاب پڑھی، اس کے بعد نے ہاں پڑھی ثابت کرتا بالکل۔ کون سی کتاب؟ کفریہ؟ ہاں کفریہ کا عبارتیں پڑھی تھی احمد رضا کی؟ بالکل پڑھی، تبھی تو کہہ رہے کہ جب وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، پڑھ تو سنا رہا عبارت میں پڑھ کے سنا، 2 عبارتیں میں پڑھ کے سنایا تھی احمد رضا کی کتابیں اشرف علی تھانوی، تو مطلب ان کو وہی آ گئی، ان کو وہی آ گئی تھی کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بلکہ ان کے خلیفہ نے پڑھی، ان کے خلیفہ نے پڑھی، ان کے خلیفہ نے اعلیٰ حضرت کے خلاف کتاب بھی لکھی۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ التین اللازم علی حضرت الکاذب۔ خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، ان کے خلیفوں نے اس کو کافر بھی کہا ہے۔ آپ بستون بنان پڑھ لیجئے، آپ بستون بنان پڑھ لیجئے، صفحہ نمبر 21 پڑھ لیجئے، ان کے مرید نے بھی سوال کیا، ان کے خلیفہ نے احمد رضا کو کافر بھی کہا، وہ نہیں مانتے؟ کون سا کتاب میں لکھا ہے؟ وہ تو جھوٹا الزام لگایا نا آپ، جنہوں نے جن کی کفریہ عبارت پر جو حکم لگا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بتائیے۔ وہ تو آج بھی کہتے ہو تم لوگ کافر، لیکن ثابت تو نہیں کر سکتے نا جن کے اوپر حکم کفر لگا ہوا ہے، انہوں نے کیا ریئیکشن دیا، کیا جواب دیا؟ روز روشن کی طرح ثابت ہے، کیا ثابت ہے؟ سعودیہ کے تمام فتووں سے احمد رضا کافر ہے، مان لو گے؟ میں جواب یہاں پہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کے اکابرین نے کیا فتوی، کیا حکم لگایا، ان کو کفر تسلیم کیا یا مسلمان مانا؟ آپ کے کاتب نانوتن میں کافر مان لیا اور آپ کے تھانوی نے دونوں نے اپنے آپ کو کافر مان لیا، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں لیکن ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایک طرف آپ کے کاتب نانوتن تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آمین آمین۔ اب حوالہ پیش کر، ابھی میں حوالہ پیش کر، عقیدہ ہوتا ہے، حوالہ اگر حوالہ پیش کر کے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے کتاب نہیں پڑھی تھی، بس حوالہ پیش کر۔ اب تمہاری باری حوالہ دینے کی، ابھی اس نے حوالے لا دو، مجرا نہیں، میں تو حوالہ مانگ رہا ہوں۔ اب مجرا شروع ہو گیا، جھوٹا کذاب دجال۔ اب بالفرض اگر عقیدہ ہے تو ارے جھوٹا، اس نے کلمہ پڑھا ہی کیوں؟ کافر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا ہی کیوں؟ بس اتنا جواب دے تو میں ساری باتیں تسلیم کر لوں گا، بس اتنا بتا دو اس نے وہ کلمہ پڑھا کیوں؟ اگر وہ عبارت کفریہ نہیں تھی تو اس نے کلمہ پڑھا کیوں؟ بس اتنا جواب دے دو مجھے۔ ایمان والا تو ہمیشہ ہی کلمہ پڑھتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ تو اپنے آپ کو کافر بول کے کلمہ پڑھا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کافر مان کے کلمہ پڑھا، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جب تحذیر الناس پر مولانا فتوے لگے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا کہہ رہا ہے کہ کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں سے سناؤ۔ اب بولو اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، اور اس کتاب کا میں حوالہ دوں گا۔ کافر مان لیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ، اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں سے سیکھا ہوں، سنا ہے، لہذا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں عبارت بھی دونوں بھیجتا ہوں، لہذا تم اپنے اکابر کے کفر میں شک کر کے تم لہذا خود کافر ہو گئے، پورے دیوبندی کو کفر کے گھاٹ اتار دیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، واخر دعوانا الحمدللہ۔